কেইদিনমানৰ পিছত আমাৰ দেশত এনে পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আহিব নেকি যে আই লাভ মাই ইণ্ডিয়া বুলি ক'ব নোৱাৰিম, আজি ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ খেল আছে বুলি ক'ব নোৱাৰিম, ইণ্ডিয়া জিকিল বুলি ক'ব নোৱাৰিম, আমি ইণ্ডিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ক'ব লাগিব নেকি ভাৰত, কিয়নো ইণ্ডিয়া নামৰ সলনি বিজেপিয়ে দেশৰ নাম কৰিব বিচাৰিছে ভাৰত। अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। कांग्रेस का जो इंडिया अलायंस है वो अपना जगह में है, लोग दुकानें खोलता है, दुकान बंद भी हो जाता है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया तो फिर भारत भी बदल देंगे। কিন্তু ইন্ডিয়ার নামটা নামে সারা বিশ্ব চেনে, হঠাৎ এমন কি হলো আজকে দেশের নামটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে? तो हमारा देश का नाम एक इंग्रज नाम क्यों होना चाहिए, भारतीय नाम होना चाहिए। अजीब सा डर भय सहम गए हैं, क्या ये इस हद तक चले जाएंगे कि संविधान बदल देंगे? हम भारत था, भारत है और भारत रहेगा। হয়, যেটা আমি এক কথাত ক'বলগীয়া হৈছে বাই বাই ইণ্ডিয়া ৱেলকাম ভাৰত, কিয়নো দেশৰ নাম ভাৰত কৰিব ওলাইছে। এনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা বিজেপিৰ মাজত চলিছে। এই চিন্তা চৰ্চা চলাৰ লগে লগে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা টুইট কৰি দিলে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই টুইটটো মন কৰক, ৰিপাব্লিক অফ ভাৰত হেপী এণ্ড প্ৰাউড ডেট আৱাৰ চিভিলাইজেশ্যন ইজ মাৰ্চিং এহেড হোল্ডি টুৱাৰ্ডছ অমৃতকাল, অৰ্থাৎ ভাৰত এতিয়া ৰিপাব্লিক অফ ভাৰত হ'ব, ৰিপাব্লিক অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ৰিপাব্লিক অফ ভাৰত হ'ব, এইবুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইট কৰিলে। এই টুইটৰ পিছতেই কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা এটা টুইট কৰা হৈছে। কংগ্ৰেছৰ টুইটটো মন কৰক, কংগ্ৰেছে টুইটটোত লিখিছে যে ইণ্ডিয়া কা মিটানা নামুমকিন হে, ইণ্ডিয়া কা মিটানা নামুমকিন হে। এইকাৰণে ইণ্ডিয়া মানে কংগ্ৰেছে ক'ব বিচাৰে তেওঁলোকৰ মিত্ৰজোঁটৰ নাম ইণ্ডিয়া। এই ঘটনা হোৱাৰ লগে লগেই হিমন্ত বিশ্বই পুনৰ এটা টুইট কৰিলে। এবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টুইট চাওক, এণ্ড হোৱাট এভাৰ ভাৰত, কংগ্ৰেছ কিয়া সমষ্টি হে, ভাৰত কা নাম মিটা যায়গা। অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়া কেতিয়াও শেষ নহয় বুলি কংগ্ৰেছে কোৱাৰ লগে লগে হিমন্ত বিশ্বই প্ৰশ্ন কৰিছে ভাৰতৰ নাম, ভাৰত কি শেষ হৈ যাব নেকি? তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে এই টুইটাৰ যুদ্ধৰ মাজতে হঠাৎ বলিউডৰ ষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চনৰ এটা টুইট আহিল। অমিতাভ বচ্চনৰ টুইটটো মন কৰক, অমিতাভ বচ্চনে কৈছে ভাৰত মাতা কি জয়। লগে লগে প্ৰশ্ন হৈছে অমিতাভ বচ্চনেও ইণ্ডিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰত নামটো বিচাৰে নেকি? এটা প্ৰশ্ন হৈছে হঠাৎ এই দেশৰ নাম ইণ্ডিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰত হ'ল বুলি উত্থাপন হ'ল কিয়? এইখিনি সময়তেই G20 বৈঠকৰ কেইটাবোৰ তথ্য আপোনালোকক সদৰি কৰিব বিচাৰিছোঁ। G20 বৈঠকৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত নতুন বিতৰ্ক। এই বিতৰ্কৰ সূচনা হয় ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নৈশ পাৰ্টিৰ বাবে জনোৱা আবেদনক লৈ। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নৈশ ভোজৰ আমন্ত্ৰণী পত্ৰক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয়। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা আমন্ত্ৰণ পত্ৰ প্ৰেৰণ হয়। এই প্ৰেৰণ কৰা আমন্ত্ৰণী পত্ৰত প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া লিখাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰেছিডেণ্ট অফ ভাৰত লিখা আছিল। লগে লগে ইয়াক সমালোচনা কৰিছে বিৰোধীয়ে মতে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী তথা বিজেপি তথা RSSে আচলতে সলনি কৰিব বিচাৰিছে, ইণ্ডিয়া নামৰ ভয়ত দেশৰ নাম ভাৰত কৰিব বিচাৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে আমি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এখন চিঠি দেখুওৱা বিচাৰিছোঁ, যিখন পুৰণা চিঠি। এইখন পুৰণা চিঠি, যিখন চিঠিত প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বুলি উল্লেখ কৰা হয়। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কোনো ৰিপাব্লিক ডে কাৰ্যসূচীত যেতিয়া আমন্ত্ৰণ জনাইছিল প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বুলি ইমান দিন লিখা হৈছিল, কিন্তু আজি হঠাৎ G20 বৈঠকৰ নৈশ ভোজলৈ যিখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল তাত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নাম কি ধৰণে লিখা হ'ল, তাত লিখা হ'ল, দ্বিতীয়খন আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, প্ৰেছিডেণ্ট অফ ভাৰত, অৰ্থাৎ প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হঠাৎ সলনি হৈ প্ৰেছিডেণ্ট অফ ভাৰত হ'ল। আচলতে বিজেপিৰ এজন জ্যেষ্ঠ সাংসদ হৰনাথ সিং যাদৱে এই প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল যে ভাৰতৰ নাম ভাৰত ৰাখিব লাগে, ইণ্ডিয়া নামটো বাদ দিব লাগে। সংসদৰ মজিয়াত সংবিধানৰ সংশোধনী গোটৰ দাবী জনাইছিল হৰনাথ সিং যাদৱে কি কৈছিল শুনি ৰবা। मैं ये अभियान नहीं चला रहा हूँ, सारा देश ये चाहता है, तमाम कोनों से ये मांग आ रही है। और हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने भी भारत शब्द के लिए उन्होंने अपील किया है कि देश के लोगों को भारत शब्द बोलना चाहिए, दूसरा कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए। भारत, इस देश का जो नाम है वो भारत है, दूसरा कोई नाम नहीं। और दूसरे भारत में जो भारत शब्द में जो जज्बा है, जो
भारत एक प्राणवान है, उससे हमको ऊर्जा मिलती है, एक श्रद्धा का भाव उस हमारा प्रकट होता है, वो इंडिया में दूर दूर तक नहीं है। और ये जो इंडिया शब्द है अंग्रेजियों में, उनकी दृष्टि में हम जाहिल कौम थे भारत के लोग, और दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ उनको लगता था कि ये जाहिल लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने इंडिया शब्द दिया है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे विकृत मानसिकता के तत्व हैं, लोग हैं, जो कहते हैं, लोगों को गुमराह करते कि वो अंग्रेज सिंध की ओर से आए थे तो वो सिंध बोल नहीं पाते थे, इंड बोलते थे, तो धीरे धीरे करके इंडिया हो गया। मैं उन मूर्ख लोगों से, पागल लोगों से, ये शब्द जानबूझ के मैं प्रयोग कर रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा, ये पूछना चाहता हूँ कि सिंध से यदि इंडिया हो गया तो वहाँ इंडोनेशिया में सिंध नदी कहाँ थी? एंग्लो इंडियन जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ सिंध नदी कहाँ थी? तमाम ऐसे देश हैं जिसके अंदर इंड शब्द है, वहाँ कहाँ थी? तो ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। भारत शब्द जो है हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का, सांस्कृतिक संपदा का, सांस्कृतिक हमारी पहचान का एक प्रतीक है, इसलिए होना चाहिए, इसलिए भारत होना चाहिए। और दूसरे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये अनेक बार कहा है कि जितने भी गुलामी की प्रतीक हैं, दासता के प्रतीक हैं, वो सब भारत भूमि से जाना चाहिए। उसी कड़ी में मेरा ये मत है कि संविधान में संशोधन करना चाहिए और उसमें भारत शब्द जोड़ना चाहिए। और अंत में मैं वेदों के एक श्लोक है उसको बोलना चाहूँगा। उसमें लिखा है स्पष्ट तौर से, उत्तरंग यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संततः। अर्थात समुद्र के उत्तर में हिमालय है और हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है उसका नाम भारत है। यहाँ की प्रजा को भारतीय प्रजा कहते हैं। इसलिए हमारे वेद में, संस्कृत के साहित्य में, हिंदी के साहित्य में, तमिल के साहित्य में, असम के साहित्य में, सब जगह भारत नाम है, इसलिए इस देश का नाम भारत है। আচলতে যোৱা সপ্তাহত অসমলৈ আহিছিল RSSৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱত। মোহন ভাগৱতে গুৱাহাটীৰ এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কৈছিল যে আমি সকলোৱে ইণ্ডিয়া শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, বৰঞ্চ আমি সকলোৱে ভাৰত শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এতিয়া ইয়াক বিৰোধিতা কৰিছে বিৰোধীয়ে বিৰোধিতা কৰাৰ মূল কাৰণ হৈছে ইণ্ডিয়াৰ বৈঠক। যোৱা সপ্তাহত এইদৰে মুম্বাইত I.N.D.I.A এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল ইণ্ডিয়া। এওঁলোকে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব ওলাইছে। এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ অংশীদাৰ দলসমূহে ক'ব বিচাৰিছে এই ইণ্ডিয়াৰ তৎপৰতাত চিন্তিত হৈ পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, যাৰ বাবে ইণ্ডিয়াৰ সলনি ভাৰত নাম কৰিব বিচাৰিছে আৰু ভাৰত নাম কৰাৰ তৎপৰ ভূমিকা পালন কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰমোদ তিৱাৰীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰিছে এইদৰে। लगता है कि अब दिन आ गए हैं विश्व शर्मा के। अरे भैया मत बोलो, नाराज जाएंगे मोदी जी। उन्हीं तो रखा था मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, ये सब तो नारे थे। हाँ, एक अशुभ था, राइजिंग इंडिया जब कहा था उस चुनाव में भाजपा बुरी तरह हारी थी। तो ये इंडिया शब्द से जो इनको एक अजीब सा डर, भय, सहम गए हैं, क्या ये इस हद तक चले जाएंगे कि संविधान बदल देंगे? संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज ए भारत। तो इंडिया और भारत तो भीमराव अंबेडकर, हमारे पूर्वजों, भारत की लोकसभा, राज्यसभा द्वारा पारित संविधान में शब्द है, इसे कैसे हटाओ? इतना डर अच्छा नहीं होता बच्चे। দেশ স্বাধীন হোৱাৰ পিছত যেতিয়া সংবিধান ৰচনা কৰা হৈছিল তেতিয়া আম্বেদকাৰে সংবিধানৰ প্ৰথম আৰম্ভণিতে লিখিছিল যে ইণ্ডিয়া ডেট ইজ ভাৰত, অৰ্থাৎ ভাৰত অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়া। ভাৰতৰ নাম ইণ্ডিয়া হ'বনে ভাৰত হ'ব, তাক লৈ সংসদৰ মজিয়াত দুদিনকৈ বিতৰ্ক চলিছিল। এই দুদিনকৈ বিতৰ্কৰ অন্তত ভাৰতৰ নাম ইণ্ডিয়াও ৰখা হ'ল, ভাৰতো ৰখা হ'ল। এই কাৰ্যক বিভিন্নজনে সমালোচনা কৰিছিল বিভিন্ন সময়ত। এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ নাম ভাৰত কৰিব ওলোৱা কাৰ্যক সমালোচনা কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিৰ সাংসদ সঞ্জয় সিঙে। भारतीय जनता पार्टी, RSS, नरेंद्र मोदी जी दलितों से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से नफरत करते हैं। नफरत इनके दिलों में भरी हुई है। क्या लिखा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? आर्टिकल की, कॉन्स्टिट्यूशन का
आर्टिकल 1 पढ़िए, पहली धारा, भारत के संविधान की पहली धारा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये किसने लिखा? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अब मोदी और भागवत जी को क्यों नफरत है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से? क्यों इतनी घृणा इनके मन में भरी हुई है? भारत के संविधान के निर्माता ने जो लिखा कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, पहली ही धारा को आप बदलना चाहते हैं। ये इस देश के करोड़ों लोगों का अपमान है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में आस्था रखते हैं, जो भारत के संविधान में आस्था रखते हैं। ये उनका अपमान है और मैं मोदी जी को और भागवत जी को आगाह करना चाहता हूं कि बाबा साहब के सम्मान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। পশ্চিমবঙ্গত অনুষ্ঠিত এখন সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে ইণ্ডিয়াৰ নাম ভাৰত কৰিব ওলোৱা বিজেপিৰ এই কাৰ্যক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে। চেঞ্জ করে দিচ্ছে আমি শুনলাম। মাননীয় রাষ্ট্রপতির নামে যে কার্ড হয়েছে G20 লাঞ্চে না ডিনারে, তাতে লেখা আছে ভারত বলে। আরে ভারত তোমরা বলি, এতে নতুনত্ব কি আছে? ইংরেজিতে বলি ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, হিন্দিতে বলে ভারত কা সংবিধান। ভারত তো আমরাও বলি, মনে নেই? ভারত আমার, ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার, স্বপ্ন গো। কিন্তু নতুন করে কিছু করার নেই। কিন্তু ইন্ডিয়ার নামটা নামে সারা বিশ্ব চেনে। হঠাৎ এমন কি হলো আজকে দেশের নামটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে? কবে কবি ঠাকুরের নাম চেঞ্জ হয়ে যাবে? বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সব নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে, বড় বড় ঐতিহাসিক সৌধ তার নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে, ইতিহাসকে পরিবর্তন। বিজেপিয়ে ইণ্ডিয়াৰ নাম ভাৰত কৰিব বিচাৰিছে যদিও দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আপৰ নেতা অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ইয়াৰ বাবে বিজেপিক সমালোচনা কৰে। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিচাৰিছে ইণ্ডিয়া নহয় দেশৰ নাম ভাৰত হওক। ইয়াৰ সপক্ষে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি নতুন দিল্লীত দীঘলীয়া যুক্তি আগবঢ়াইছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যুক্তি মন দি শুনক। बोलने से तो बाद में डबल अलायंस तो ये डबल हो गया, वो तो नहीं है। तो मतलब कांग्रेस का जो इंडिया अलायंस है वो अपना जगह में है। लोग दुकानें खोलता है, दुकान बंद भी हो जाता है। वो दुकान खुला है, दुकान बंद भी हो जाएगा। लेकिन जो भारत है, भारत संद्र और शुरू जितना आपको लगता है ओल्ड है, जितना पुराना है, भारत भी इतना पुराना है और भारत भी जब तक सान और सुरूज रहेगा भारत भी रहेगा। सीएम साहब जयराम रमेश का कहना है कि ये राज्यों के संघ पर हमला है। देखिए, जयराम रमेश जी कोई राज्य का प्रवक्ता नहीं है। हर राज्य चाहते, हर भारत का जनता चाहते कि हमको भारत में नाम से हमारा परिचय हो देश में। जब देश अमृत काल का तरफ जा रहा है तो हमारा देश का नाम एक इंग्रज नाम क्यों होना चाहिए? भारतीय नाम होना चाहिए, भारतीय सबसे होना चाहिए। समय था स्वाधीनता का समय, वो एक अलग समय है। लेकिन अगर नाम भारत होता है जो है ऑलरेडी, उसमें जयराम रमेश जी का प्रॉब्लम क्या है? कांग्रेस पार्टी का क्या प्रॉब्लम है?
उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा क्यों किया, इंडिया जोड़ो यात्रा क्यों नहीं किया? अच्छा, जब आपको लगता है कि मेरा अभी दाल रोटी पकने वाला है तब आप नाम भारत जोड़ो ले लेता है, और जब आपको लगता है कि हमारा दाल रोटी पकने वाला नहीं है तब आप इंडिया हो जाते हैं। तो हमारा बात क्लियर है, हम भारत था, भारत है और भारत रहेगा। तो क्या सर आपको लगता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इंडिया शब्द को ही हटा देना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन में ही है इंडिया यानी कि भारत, मतलब जो मूल शब्द है वो तो भारत ही है ना। इंडिया यानी कि भारत मतलब क्या हुआ? मतलब इंडिया ब्रिटिश ने बोला था यानी कि भारत, तो मूल शब्द तो भारत ही है। मूल शब्द कभी तो वो मेरा हिसाब से, मैं भी लॉ कुछ किया हूँ, मेरा हिसाब से हमारा संविधान का जो मूल नाम है, हमारा देश का जो मूल नाम है वो भारत ही है। लेकिन आप कभी फॉरेन में जाते हैं तो बोल दीजिए कि ये इंडिया है। सर, क्या कारण है कि विपक्ष को इतनी मिर्ची लगी हुई है? अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं। विपक्ष का यही है, आप पहले विपक्ष तो ये षड्यंत्र कर रहा है कि हिंदू धर्म को ही मिटा दो, अभी ये भी पीछे पड़ गया भारत को ही मिटा दो। तो पहले वो लोग जाके राहुल गांधी जी से पूछे कि यात्रा का नाम इंडिया जोड़ो यात्रा नहीं रखा, भारत जोड़ो यात्रा क्यों रखा था? हमें भारत बोलने से वो लोग फरफरा जाते हैं, लेकिन आपका जो युवराज भारत बोलता है तब आपको कोई खुजली नहीं होता है। तो ये एक पूरा कांग्रेस पार्टी एक तो हिंदू का खिलाफ है और एक भारत का खिलाफ। অৱশ্যে বিৰোধী যি মিত্ৰজোঁট যাক ইণ্ডিয়া বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ শ্লোগান হৈছে জিতেগা জুড়েগা ভাৰত জিতেগা ভাৰত, অৰ্থাৎ ভাৰত নামটোক তেওঁলোকে বাদ দিয়া নাই।